Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 4 of exercise 5b of 5th chapter exponents. Question number 4. Simplify and express the answer in positive exponent form. हमें इन questions को simplify करना है और हमारा answer positive exponent form में आना चाहिए. First bit, minus 3 to the power 3 into 2 to the power 6 by 6 into 2 cube. माइनस को हम बाहर ले लेते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 into 2 to the power 6 by 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 into 2 to the power 3 equal to minus 3 to the power 3 into 2 to the power 6 by 3 into 2 to the power 1 into 2 to the power 3. पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 equal to minus 3 to the power 3 minus 1 क्योंकि 3 ऊपर है और यहाँ का पावर 1 नीचे है. मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो नहीं है, ये डिवीजन के फॉर्म में है. 3 to the power 3 by 3 to the power 1 तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा इनटू 2 to the power 6 by 2 to the power 4 डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज 2 to the power 6 minus 4 which is equal to minus 3 का स्क्वायर into 2 to the power 2. 6 minus 4 2 होता है. So this is our answer. Now second bit is 2 to the power 3 whole to the power 5 into 5 to the power 4 by 4 cube into 5 square. इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 15 into 5 to the power 4 by 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 का होल क्यूब into 5 square equal to 2 to the power 15 into 5 to the power 4 by 2 to the power 3 into 2 to the power 3 into 5 square which will be equal to 2 to the power 15 माइनस 6 हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 to the power 3 और 3 यहाँ पर पावर्स ऐड होकर 6 होंगे और जब ये डिवीजन के फॉर्म में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 15 minus 6 into 5 to the power 4 minus 2 which is equal to 2 to the power 15 minus 6 हो जाएगा 9 into 5 to the power 4 minus 2 2. So our answer is 2 to the power 9 into 5 square. Next bit is 36 into minus 6 square into 3 to the power 6 by 12 cube into 3 to the power 5. This is equal to 36 को हम 6 6 36 लिख सकते हैं और इस 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं. 3 2 6 3 2 6 so 6 6 36 into 6 है, इसे हम 3 2 6 लिख सकते हैं. स्क्वायर होगा मीन्स 2 टाइम्स होगा और ये माइनस है, अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसे अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है. 6 को हम क्या लिखेंगे 3 into 2 स्क्वायर है मीन्स और एक बार 3 into 2 6 और 6 का स्क्वायर हो गया into 3 to the power 6 by 12 क्यूब है. 12 को हम लिख सकते हैं 3 into 2 into 2 3 2 6 2 12 का होल क्यूब into 3 to the power 5. Now 3 to the power कितने 3 है 1 2 3 4 plus 6 4 plus 6 10 हो गया. 3 to the power 10 into कितने 2 है 1 2 3 4 2 to the power 4 by 3 to the power 3 into 2 to the power ये 3 और ये भी 2 to the power 3 तो 3 plus 3 हो गया 2 to the power 6 into 3 to the power 5. Now 3 to the power 10 नीचे 3 plus 5 8 हो गया. अगर ऊपर आएंगे तो 10 minus 8 into 2 to the power 4 by 2 to the power 6 डिवीजन का फॉर्म है. 6 ऊपर जाएगा तो minus 6 क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं. दिस इज इक्वल टू 3 to the power 2 into 2 to the power minus 2. लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हमें सारे पावर्स पॉजिटिव चाहिए तो इसे हमें इन्वर्स करना होगा तो ही इसका पावर पॉजिटिव होगा, दैट इज 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर. इसे हम और क्या लिख सकते हैं 3 by 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. Now fourth bit, minus 128 by 2187. Minus 128 means 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 2 7 टाइम्स मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं minus 2 to the power 7 by 2187 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 to the power 7. So our answer is minus 2 by 3 whole to the power 7. This will be our answer. इसे अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि ये 3 to the power 7 और 2 to the power 7 आएगा. नेक्स्ट बिट इज a to the power minus 7 into b to the power minus 7 into c to the power 5 into d to the power 4 by a cube into b to the power minus 5 into c to the power minus 3 into d to the power 8 equals to
ये वाला डिवीजन फॉर्म में है, बी भी, सी भी, डी भी। इंडिविजुअली अगर ए को लें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻7 -3। डिवीजन का फॉर्म है, मींस पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, इंटू b⁻⁻7 -5 इंटू c⁵ -3 इंटू d⁴ -8, which is equal to a⁻⁻7 -3 -10 into b⁻⁻7 +5. So -7 +5 -2 c⁵ +3 5 + 3 8 d⁴ -8 -4। तो अब हमारे पास तीन पावर्स नेगेटिव है, तो इनका इन्वर्स करेंगे तो ये पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज c⁸ 8 बाय a⁻10 b⁻2 d⁴। ये हमारा आंसर हो गया और सारे पावर्स पॉजिटिव हो गए। नाउ सिक्स्थ बिट इज a³ d⁻⁻5 का होल टू द पावर -2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a⁻3 × -2 -6 इंटू b⁻−5 इंटू -2 +10। अब a का पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो इन्वर्स करना पड़ेगा, सो b⁻10 by a⁻6। दिस विल बी आवर आंसर। Now question number 5. Evaluate. First bit 6⁻² divided 4⁻² into 3⁻²। पावर नेगेटिव है, इसे अगर पॉजिटिव करना है तो 1/6² डिवाइडेड 1/4² into 1/3²। सारे पावर्स पॉजिटिव हो गए। Now 1/6² is 1/36 divided 1/4² is 4 4 16 into 1/9 equal to 1/36। अगर ये डिवीजन का फॉर्म है, इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे, दैट इज 16 into 9 9 4 = 36 4 4 = 16। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट बिट इज 5/6 होल स्क्वायर इंटू 9/4 डिवाइडेड -3/2 होल स्क्वायर इंटू 125/2 16। 5 का स्क्वायर 25 by 6 का स्क्वायर 36 इंटू 9/4 डिवाइडेड -3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 इंटू 125/2 16। अब ये फॉर्म है, यहाँ पर अगर कोई रिडक्शन होगा तो हम करेंगे 9 4 = 36, यहाँ पर 3 3 = 9 3 7 = 21 3 2 = 6 3 2 = 6 3 4 = 12 और कोई रिडक्शन तो नहीं हो रहा। Now our question is 25 by 4 4 = 16 divided 125 by 4 4 = 16 4 2 = 8 1 9 96। Now 25 by 16 into 96 by 125। अब हमारा क्वेश्चन हो गया ऐसा, क्योंकि डिवीजन था मल्टीप्लाई हुआ तो ये रिवर्स हो गया। Now 25 5 × 125 16 6 × 96। Our answer is 6/5। Now next bit is 5³ into 3² plus 17 to the power 0 into 7³। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 = 25 5 × 125 3 3 = 9 plus any number to the power 0 will be 1 into 7 का क्यूब कितना होगा 343 which is equal to 125 into 9 1125 प्लस 343। इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 1468। नाउ नेक्स्ट बिट इज 2 to the power 5 into 15 to the power 0 plus -3 whole cube -2/7 whole to the power -2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 means 32 into any number to the power 0 is 1 plus -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 माइनस 2/7 to the power -2 है, इसे अगर रिवर्स करे तो ये पावर ऐड हो जाएगा, मीन्स ये पावर प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस -27 -49/4 इक्वल टू 32 - 27 5 -49/4 equal to LCM 4। This is 20 - 49/4
इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 49 minus 29 by 4. This will be our answer. Now fifth bit is 2 का square whole to the power 0 plus 2 to the power minus 4 divided 2 to the power minus 6 plus 1 by 2 whole to the power minus 3. Any number to the power 0 will be 1 plus 2 to the power minus 4 inverse करते हैं power positive हो जाएगा that is 2 to the power 4 divided 1 by 2 to the power 6 plus 2 by 1 का क्यूब. इसे अगर इन्वर्स कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ 1 प्लस 1 बाय 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 डिवाइडेड 2 टू द पावर 6 मीन्स 64 प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 16 इंटू 64. इसे रिवर्स कर देंगे प्लस 8 16 4 जा 64 इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 8. सो आवर आंसर इज 13. Now next bit is 5 to the power n into 25 to the power n minus 1 divided 5 to the power n minus 1 into 25 to the power n minus 1. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 25 को 5 के टर्म्स में लिखेंगे. That is 5 to the power n into 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर whole to the power n minus 1 divided 5 to the power n minus 1 into 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर whole to the power n minus 1 equal to 5 to the power n into 5 to the power 2 into n minus 1 means 2n minus 2 divided 5 to the power n minus 1 into 5 to the power 2n minus 1. तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया 5 to the power n into 5 to the power 2n minus 2 divided 5 to the power n minus 1 into 5 to the power 2n. This is 2n minus 2. Now बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे n plus 2n minus 2 divided 5 to the power n minus 1 plus 2n minus 2 which is equal to 5 to the power n plus 2n 3n minus 2 divided 5 to the power 2n plus n 3n minus 1 minus 2 minus 3. अब हमारी ये क्वेश्चन डिवीजन का फॉर्म है मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे यहाँ लिखते हैं 5 to the power 3n minus 2 minus 3n minus 3. पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि ये माइनस पूरे के लिए है इक्वल टू 5 to the power 3n minus 2 minus 3n माइनस माइनस प्लस 3. 3n और 3n कट गए. अब हमारे पास 5 to the power 3 minus 2 which is equal to 5 to the power 1 means our answer is 5. Now question number 6. If m equals minus 2 and n equals 2, find the value of. यहाँ पर हमें m और n के वैल्यूज दे दिए गए हैं. हमें सिंपली इनमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स निकाल लें. फर्स्ट बिट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn. m कितना है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस n कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8. So 4 plus 4 8 8 plus 8 16. सेकेंड बिट m to the power n plus n to the power m. m कितना है माइनस 2 to the power 2 प्लस n कितना है 2 whole to the power minus 2. माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस पावर नेगेटिव है अगर पॉजिटिव करना है तो हम लिख सकते हैं 1 by 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 by 4 इक्वल टू एलसीएम 4 होगा 1 4 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 1 1 जा 1. सो आवर आंसर इज 17 by 4. Now third bit is 6 m to the power minus 3 plus 4n square equal to 6 into m कितना है माइनस 2 उसका पावर माइनस 3 प्लस 4 n कितना है 2 उसका पावर 2 इक्वल टू 6 माइनस 2 का पावर माइनस 3. ऐसे तो नहीं हो सकता हमें पावर पॉजिटिव बनाना है तो हम लिख सकते हैं 1 by माइनस 2 होल टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 6 बाई कितना हो जाएगा माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 8 प्लस 4 4 जा 16. इसे अगर रिड्यूस करें 2 3 जा 6 2 4 जा 8 नेगेटिव ऊपर चला जाएगा सो माइनस 3 by 4 प्लस 16 एलसीएम हो जाएगा 4. दिस इज माइनस 3 प्लस 64 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 61 by 4.
नाउ नेक्स्ट बिट इज 2n क्यूब माइनस 3m। n कितना है 2, उसका क्यूब माइनस 3m कितना है -2। 2 इंटू 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 8 जा 16 प्लस 6 16 प्लस 6 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। 8 इंटू 8 टू द पावर 15, अगर इसके पावर्स को ऐड करें तो हमें मिलेगा 8 टू द पावर 16। यहाँ पर दिया गया है 64 टू द पावर 16। 64 को अगर हम लिखें 8 का स्क्वायर देन 16, तो 8 का स्क्वायर में 64, इसे सॉल्व करेंगे तो 8 टू द पावर 32। तो ये तो अनइक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, मीन्स दिस इज फॉल्स। हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ 8 टू द पावर 16 और इधर 8 टू द पावर 32, तब तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज 16 टू द पावर 8 डिवाइडेड 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 टू द पावर 6। इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर होल टू द पावर 8 डिवाइडेड 4 का स्क्वायर। 4 के टर्म्स में ले आए, ये कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 16 और ये 4 स्क्वायर, तो 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 टू द पावर 16 माइनस 2 14। और यहाँ बोला गया 4 टू द पावर 6, जबकि ये तो 4 टू द पावर 14 हो रहा है, मीन्स ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड बिट इज 27 टू द पावर 0 1 होता है, एनी नंबर टू द पावर 0 1 होता है, ये दोनों तो इक्वल है, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ फोर्थ बिट -1 टू द पावर n इक्वल्स 1 इफ n इज एन इवन होल नंबर। n कोई इवन होल नंबर है तो हमारा आंसर -1 के ऊपर अगर n कोई इवन होल नंबर है तो हमें 1 मिलता है। ट्राई करके देखते हैं। -1 के ऊपर होल नंबर बोला गया है तो यहाँ हम 2 लेकर देखते हैं, इवन नंबर लेना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 को टू दी पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ फिफ्थ बिट -1 टू द पावर n इक्वल्स -1 इफ n इज एन ऑड नंबर और इवन होल नंबर। अच्छा, यहाँ बोला गया है इस क्वेश्चन में कि n ऑड हो चाहे इवन हो, हमें -1 ही मिलेगा। यहाँ हमने देखा जब इवन हो रहा है हमें +1 मिल रहा है, और जब यहाँ पर हम ऑड नंबर लेकर ट्राई करते हैं -1 टू द पावर 3 तो हमें मिल रहा है -1, और इस स्टेटमेंट के लिए तो ट्रू हो रहा है। और अगर हम इवन नंबर लेकर ट्राई करते हैं लेट -1 टू द पावर 2 तो हमें +1 मिल रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दिस इज फॉल्स। एक कंडीशन में हमें +1 मिल रहा है, एक कंडीशन में -1 मिल रहा है, तो दोनों के लिए -1 हम नहीं कह सकते, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बिट इज -3 का पावर -3 हमें +9 देगा। पहले तो ये -3 को हम पॉजिटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई -3 का क्यूब, कितना मिलेगा हमें 1 बाई -27, जबकि यहाँ बोला गया हमें +9 मिल रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट बिट इज 4 टू द पावर -4 इक्वल्स -16। 4 टू द पावर -4 को हम पहले पॉजिटिव पावर बनाते हैं, दैट इज 4 टू द पावर 4। अब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, हमें कितना मिल रहा है 1 बाई 256, जबकि यहाँ बोला गया है -16, मीन्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। That's all for this video.